just say go? Yes, you did, and we are going. I'm not going. I'm really upset today. You can go anywhere. Anyways, before we get to that, I just want to say welcome Yes, that's to a our good show. yeah. दो मस्ताने Yeah. आप देख रहे हैं जिसका ताउन किया है. आज हम ताउन. स्पॉन्सर नहीं कहेंगे, ताउन किया है. ताउन किया है. सिनेड्रीम्स वालों ने. सिनेड्रीम्स मीडिया एक बहुत उभरती हुई, उभरते हुए सितारों की तरह एक उभरती हुई कंपनी है. ये जो पीछे जो ये ताउन किया हमने, ताउन. ये इनका जो ड्रीम्स है, इनका जो ड्रीम है, बस ड्रीम ही रह जाता है वो. सच होने वाला है. सच होने वाला. हाँ. अच्छा. लेकिन सिनेड्रीम्स के लिए भी बहुत बुरी खबर है. हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बुरी खबर है. यार इसके ऊपर नाम या इस चीज को ना छेड़ो प्लीज. आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एविड इन्वेस्टर मिस्टर एंडी. Mr. Andy. So Andy, what's going on with this whole biggest market loss in the history of the stock market? Right. The U.S. stock market lost $2 trillion. $2 trillion in 6 hours. No, 3 days. It lost. No, sorry, I meant to say $670 million. Yes. In 6 hours. In 6 hours. From 9:30 in the morning till 4:30 in the afternoon, we have lost $670 million on the floor. Yeah. Now, what are your thoughts on that? What exactly happened? I lost 4.65 mil in this because some guys far east who built up this goddamn AI thing, you know, had all the bells and whistles because, you know, they're Mr. Ming Lee. Ming Lee, I know you got all the bells and whistles, stuff that we can't think about over here. Okay? And you guys screwed us. I think you screwed us over. They did. We lost billions in 3 days. Andy की रुदात तो आपने सुनी रही है, but let me give them a little bit. I haven't shaved. Backstory. I haven't shaved since this afternoon. The only thing I've lost since morning is maybe 3 strands of hair. Yeah, but Abdullah, I haven't shaved since this afternoon. But ये हालत है. Because नहीं कुछ लोगों की वाकई I ये हालत shave like 3 times a day. Some people have lost their life savings. Yeah, man, life savings. They're not just their life savings, but their next 3 generations of life savings. I think Abdullah that the crash of October 87. Well, that was nothing. Black Monday. That was the whole market crashing. आज जो हुआ है और पिछले 3 दिन में जो हुआ है, that basically is the crash of one of the biggest success stories over the last 2 years, which is AI, ChatGPT. Yeah, ChatGPT. ChatGPT का जो stock है, वो इतनी तरह बुरी तरह plunge किया है. यार जब वो कह रहे हैं ना कि $200 मतलब monthly. Yeah. और उन्होंने कहा है उधर वहाँ से कि भाई it's a free, you know, platform that they're using or that program that you're using. पागलों की तरह यार बेच रहे हैं यार मुझे. नहीं हुआ ये देखें Nvidia जो है the company behind the creation of ChatGPT 2 साल से बहुत ऊपर रही थी. Their stock was way up there. People were investing. पिछले 3 दिनों में the market lost $2 trillion in a space of 3 days. 3 days. तो एक दिन में Nvidia के जो shares हैं they plunged close to 17%. 17% बहुत ज़्यादा नहीं लगता. But when you're talking trillions and billions of dollars. हाँ. उसके अलावा मतलब देखिए स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हैं, स्टॉक्स गो अप एंड डाउन, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? लाइक व्हाट डू यू थिंक द रीजन इज बिहाइंड दिस? मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमिक फोरकास्टर्स हैं ना, सब मिली भगत हुई है. नहीं ये आप छोड़ दें इकोनॉमिक फोरकास्टर्स को या स्टॉक मार्केट को या फिर इन्वेस्टर्स को या क्या कहते हैं the guys who do day trading and all those margin calls and derivatives and puts and warrants calls. If I can say two words for the cause of this downfall, the first word would be Donald and the second word would be Trump. China. Okay, now you're gonna have China to explain that. हाँ, explain करना पड़ेगा तुम्हें. अच्छा, चाइना कह रहा हूँ. ट्रम्प की जो एक सबसे बुरी अच्छी आदत भी कह सकते हैं कुछ लोग. डिपेंड करता है, नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है. For the lack of a better word, उसको पंगे लेना बहुत अच्छा लगता है. He tried to take पंगा from Mexico in his last term. He took पंगा from. He's taking पंगा from Canada. अभी भी पंगा ले रहा है कनाडा से और वो कोलंबिया के साथ उसने जो पंगा लिया है उसने. हाँ. लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो चीन के जो है ना उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए साले चॉपस्टिक्स के साथ. भाई ट्रम्प मेरे माई बाप हैं. आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत महापुरुष हैं. महापुरुष भी नहीं है. हर एक के साथ you can take पंगा against the entire universe.
लेकिन चाइना के साथ पंगा लेने का नहीं, 你送你嘢奉作了， पंगा लेने का नहीं। 送你嘢，送你嘢。 आपको याद होगा, do you guys remember what happened a few years back when he was president 4 years ago, 5 years ago? He pulled another stunt against Chinese telecom companies, Yeah. namely Huawei, Hawaii, and remember that? Xiaomi. कि ये जो हैं, they cannot sell their phones or their technology in North America. क्या हुआ? They went elsewhere. China practically owns the rest of the world. So they kept thriving. Abdullah, can I say something? It's a little bit Yes. conspiratorial. When that Hawaii thing happened, my God, I call it Hawaii. हाँ. Huawei ऐसे ही था. Hawaii ऐसे हुई है. Hawaii यही हुआ. Hawaii. I sound like साला वो from Golmaal. Why you? Anyway, right after that happened, हाँ. COVID happened. COVID happened. तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो बड़ा Nvidia का We connect the dots over here, Abdullah. We connect the dots globally. We let people know what the big people are thinking, the movers and the shakers, Yeah. the economic policymakers all around the world. We're sitting here and we let you know what's happening behind the curtain. Yes. तो देखिए 4 साल पहले हवाई से पंगा लिया, हवाई से Honolulu से Honolulu हवाओं से लड़ा था वो. और अब उसने ये किया कि Nvidia जो है, जो the biggest chip company behind ChatGPT maker, he told them not to sell their technology or anything to China. तो चाइना ने कहा कि ठीक है भाई, we'll do it तुमने ourselves. 5 बिलियन खर्च किए हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी बनाने को, we'll spend more. हम 6 बिलियन में बनाएंगे. And DeepSeek, which is a Chinese company, came up with their own AI version. Yep. And they had it a long time ago, man. नहीं, और सोने पे सुहागा, ये चैट जीपीटी की तो सब्सक्रिप्शन होती है, आपको $200 महीने के देने पड़ते हैं. वो साले वो क्या कर रहे हैं? It's open source. It's open source. They've got other ways of making money, but they know that if they sell this product to the general public for free, sell something for free, यानी free में दे दें, and they are thriving now, and they will thrive. China की सबसे बुरी आदत ये है कि वो कुछ काम में हाथ डालते हैं तो वो हाथ वहीं का वहीं रह जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. बाकी सबके हाथ निकल आते हैं वहां से. Because they go so deep into it, they go and learn technologies from elsewhere and build their वो पता कहाँ से लर्न करते हैं? मार्स जाते हैं, अपने एलियन से जाके बात करते हैं, वो सारे वो चीने जो हैं. हाँ, क्योंकि एलियंस उनकी जबान समझ सकते हैं. बिल्कुल वही. और उनका खाना खा सकते हैं. तो अभी हमारे बर्दाश्त कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं. कुरैशी साहब कह रहे थे कि पिछली बार जो हवाई के साथ हुआ, उसके बाद कोविड आया था. अब के जो हुआ है, they're calling this plunge in the market of $2 trillion. Literally, they are calling it the bloodbath. Yeah, it is a bloodbath. समझते हैं आप लोग? लेकिन ये साला खून में नहा रहे हैं सब. वो खून में नहा रहे हैं. ये एक उनकी अजीब किस्म की फेटिश है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खूनी फेटिश. फेटिश. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये साला हमेशा ये कहता रहता है, ट्रम्प, everything's a bloodbath. When I wake up in the morning and I'm thinking about Joe, it's a bloodbath. It's a bloodbath. So it's going to be no, but Abdullah, this is the downturn of the global economy. This particular incident, this sequence of events that happened here, the $200 monthly and the free program. This is the beginning. So, my dear friend DT, here's the thing. I lost 4.5 mil on this. आप जो है चाइना से पंगा मत लेना कभी. And remember one more thing. I know you're trying to pull some shots with Canada. Canada जो है चाइनीज लोगों से बहुत भरा हुआ है. वाकई ऐसे ही है. उबल रहे हैं. जहाँ भी देखता हूँ मैं बस चीनी नजर आते हैं. मुझे चीनिस्तान लग गया है मुझे तो ये. Think twice. अबे इसको चीना डाल कहना चाहिए हमें. मैं इसको चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई तू सोच लेना कि कनाडा से पंगा लेने से पहले कि there's a lot of Chinese influence. There is a lot of Chinese influence. Country. Canada is no longer going to be Canada, it's going to be Canada. Well, Toronto is Toronto? Toronto. Listen, Abdullah, we can say whatever we want about them. Good on them. They thought about it. They knew what they were doing. Yeah. And they screwed the rest of the economic stage around the rest of the world right over.
बहरहाल वक्त कम है, हम तो इस ब्लड बात पे बात करते रहे हैं, खून में नहा जाए हम सब। हाँ, लेकिन दूसरी हमें जल्दी से न्यूज आपको ये देनी थी, खुशखबरी है। खुशखबरी। अभी जो बबल बात देंगे हम आपको, बबल बात। डोनाल्ड ट्रम्प के जो वो बिछड़े हुए भाई हैं, डग फोर्ड, दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। they look alike, They look like second cousins. They do, second. So From the mother side. From mother side. He's officially called the motion for elections to take place On Wednesday. On Wednesday. तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है यार? क्या मेरा ये ख्याल है कि जो भी होगा, मंजूर खुदा होगा। जो हो रहा था उससे बेहतर होगा, वरना नहीं होगा। वरना नहीं होगा, ऐसे ही यार। ये हमारे जो कनेडियन पॉलिटिक्स एकदम एक सर्कस बन चुकी है यार, एक सर्कस बन चुकी है कसम से। ये जो ओलिविया चाव भी जो अपने बयान देती रहती है अपनी, जो कि मुझे समझ भी नहीं आता वो क्या कह रही है, वो पता नहीं किस जबान में वो बोल रही है। वो भी अपने चाइना की जबान में बोलती है, चाइना की जबान में बोलती है। एंड आई थिंक शी इज इन ऑन दिस होल थिंग, दिस एआई थिंग। या well, who shouldn't be? Now, and if you guys are listening, I know we were changing topics again. Back and forth, you know, it's like ADHD. अपने जो stocks हैं, आप Chat GPT से, Nvidia से निकालिए और डीप सीक में जाइए। लेकिन अब क्या फायदा यार, it's too late now. हाँ, शॉर्ट सेल करें, शॉर्ट सेल कर लो, शॉर्ट बोनस सेल कर लो तुम। मार्जिन कॉल्स कीजिए आप। हाँ, मार्जिन कॉल्स और पुट्स डालें आप, अपना थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। Anyways, I'll quickly give my predictions for the Canadian elections. Liberals will not win. Wow. What? Did you hear that, everybody? The Liberals won't win. Yeah. What are the bloody chances of the Liberals not winning? 110%. And so you really stuck your head out there. Yeah, you took a real risk there with that. बहुत बड़ा लग रहा है वैसे भी आज सर मेरा। खैर तुम्हारा सर, तुम अपनी सर यार, मेरी सर के बारे में बात करो। मैं इसलिए तुम्हारे बराबर बैठता हूँ। You're the only person who has a bigger head than I do. बिल्कुल, ताकि तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। इस तरह जो तरबूज जो पता नहीं इसका क्या करूंगा मैं यार, इसको काट डालो, अंदर से बीज निकलेंगे। ओह, फिर अगर किसी और के अगर कोई चलेगा तो, अगर उनका भी सर अगर मेरी तरह बन गया तो बहरहाल what will happen? We are going to take a break now. देखते रहिए अगला सेगमेंट हमारा। उम्मीद है कि आप उसको एंजॉय करेंगे। Oh, before we do, Amin, hold on. Just because we're saying all these things about China doesn't mean we hate China. We love China. No, we love China. I love China. I'm going to Beijing and then I'm going to go to Shanghai. We want everyone, including DT, to love China. Yes. We'll be back. Do you like China? अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada and Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. हेलो, हाय एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अपने अपने घरों में बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आज हम फिर आपके सामने आए हैं अपना लाइट कैमरा क्लासिक्स का एक नया एपिसोड लेके। जी हमारे इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है सिने ड्रीम्स वालों ने और ड्रीम्स क्रिएशन वालों ने। हम पिछली बार उनका नाम लेना भूल गए थे, लेकिन हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ड्रीम्स क्रिएशन है नाम है ना? ड्रीम्स क्रिएशंस। एंड ड्रीम्स क्रिएशन इज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। द टैगलाइन इज वी क्रिएट ड्रीम पार्टीज। सो आपके ऐसे कोई भी प्राइवेट पार्टीज हो, पब्लिक, किसी भी चीज का आपके पास कोई भी इवेंट आपको करना हो, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए ड्रीम्स क्रिएशंस। जबरदस्त। वैसे हमारे सारे स्पॉन्सर्स के नामों में ड्रीम्स होते हैं, सब ख्वाब और सपनों में फिरते रहते हैं। इन्हीं को पूरा करने के लिए तो हम इनका सहारा लेते हैं। जी तो कुछ ख्वाब हैं, आपके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, उन्हीं को मुलतवी करने के लिए तो ये सब हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में कर रहे हैं काम। चलिए, तो आज की में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की हमारी जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो भी एक मेरे लिए तो एक ख्वाब से भी बढ़कर एक हसीन सपना जिसे कहते हैं ना। कुछ अमर प्रेम कहानियां होती हैं हमारी, काफी सारी हमने एक अमर प्रेम कहानियों के बारे में सुना है जो कि सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, अपने दिलों में एक एहसास छोड़ जाती है, दिलों में घर कर जाती है। चाहे वो लैला मजनू का जुनून हो, हीर रांझा की रूहानी मोहब्बत हो, या फिर रोमियो जूलियट की एक कुर्बानी हो, चाहे कैसी भी स्टोरी हो। तो इसी तरह की एक अमर प्रेम कहानी हम भी आपके लिए लेके आए हैं, कहानी राज और रश्मि की। राज और रश्मि, वैसे इस फिल्म का नाम अगर राज और रश्मि होता तो वो भी अच्छा लगता। कुछ याद आया? राज रश्मि, ये राज बैठे हैं, मैं रश्मि बैठी हूँ। नहीं याद है आपको? क्या पापा क्या कहते थे आप लोगों से? नहीं, आ तो गया होगा अब तक। इतनी हम लोग क्लोज उनकी लुक्स को लेकर आपके सामने आते हैं, आई गेस आपको देखते ही पता चल जाता होगा। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आज बॉलीवुड की एक ऐसी क्लासिक लव स्टोरी जिसका नाम है कयामत से कयामत तक। क्या खूबसूरत नाम दिया है उस मूवी को, मतलब इतना क्या बोलेंगे उसको कि मुझे वक्त शब्द नहीं मिल रहा। बहुत रुमानी नाम है, आई मीन लाइक जुनून से भरा हुआ, कयामत से कयामत तक, कयामत से दूसरी कयामत। और देखकर मतलब सुनकर आपको लगता होगा ये कोई लव स्टोरी है। मैंने जब पहली बार इसका नाम सुना, मैं कभी नहीं जज कर सकती थी कि ओके इट कुड हैव बीन अ लव स्टोरी। हाँ, और इससे पहले आप अभी थोड़ी देर पहले ये बता रही थी मुझे कि इस फिल्म का नाम असल में कुछ और होना था। बिल्कुल, इस फिल्म में मंसूर खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और नासिर खान का प्रोडक्शन, नासिर हुसैन जी का प्रोडक्शन हाउस था। तो उन्होंने पहले इस मूवी का नाम रखा था नफरत के वारिस। ओहो, ये तो ड्रामा ही नाम है। हमें बिल्कुल ही ड्रामेटिक था कि वो लोग किसी की नफरत को ही जी रहे थे और नफरत के वारिस थे राज और रश्मि। फिटिंग टाइटल था। बिल्कुल। और फिर चेंज करके हुआ दरार, एंड देन फाइनली नासिर हुसैन केम अप विद एन आइडिया दैट नो इट शुड बी कयामत से कयामत तक। सो रेस्ट इज हिस्ट्री। जो भी हो, इस फिल्म ने कयामत मचा दी थी। बिल्कुल, जवान लोगों के दिलों में भी और जो बड़े बूढ़े भी थे। क्योंकि मैं एक मुद्दा पेश करना चाहूंगा, इससे पहले ये फिल्म उमूमन 88 में आई है, राइट? हाँ जी, ये 1988 बिल्कुल। और हम फिल्म में बचपन से देख रहे थे। मैं जब ये फिल्म आई होगी मैं 13 साल का था, तो आप मेरी एज गेस कर सकते हैं, गेस क्या एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन उससे 4-5 साल पहले 83 से लेके 87-88 तक अजीब अजीब फिल्में बनने लगी थी इंडिया में। बॉलीवुड का जो ग्राफ था वो थोड़ा नीचे जा रहा, चेंज हो गया था। और इस मूवी ने रोमियो जूलियट की जो एक कहानी को था, उसको इतनी ब्यूटीफुली आपके सामने पेश किया। जो एक कहानी थी उसको किसी अलग ही अंदाज में आपके सामने पेश किया, जिससे हर एक मतलब उस उम्र के लड़का लड़की इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाया। यू नो, दुश्मन फैमिली, आप दोनों का प्यार, राइवलरी, और फिर उसके बाद बिल्कुल आई मीन क्या नहीं था इस मूवी में। एक यूथफुलनेस थी, एक फ्रेशनेस थी, रोमांस था, इमोशंस, लड़ाई, मार धाड़, एवरीथिंग वाज देयर। सो इट वाज अ फुल कंप्लीट पैकेज एंड एवरीबॉडी लव्ड। इसके अलावा मेरे ज़हन में ये था कि उससे पहले फिल्में बनती थी, ये लैला मजनू बनी, हीर रांझा बनी, सस्सू, वो सोनी महिवाल बनी, लेकिन वो क्योंकि क्लासिक्स पे मबनी थी, बेस थी, तो उनका जो एक कनेक्शन था ना लोगों को इससे हो नहीं पाया, क्योंकि वो पुराने जमाने दिखा रहे थे।
इसमें आपको वही कंटेम्प्रेरी जमाना दिखा है, उसी किस्म के लोग, एक जवान लड़का, खूबसूरत एक हसीन लड़की, और उन दोनों में मिलाप होना, उन दोनों का प्यार बढ़ना, और फिर उसकी आखिर में कुर्बानी। पहले वो घर छोड़ा, उन्होंने घर से भागते हैं, लेकिन फिर आखिरकार उन्हें अपनी प्यार की कुर्बानी अपनी जान लेके देनी पड़ती है, जो कि मतलब इट्स सैड एंड ट्रेजिक, लेकिन उसी के साथ उससे बेहतर एंडिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस मूवी के लिए और खास बात क्या है कि इस मूवी ने हमें इस मूवी में पहली बार एक चॉकलेट बॉय हमारा हीरो दिया, आमिर खान, हमारे राज जी। तो उनको देख के तो मुझे याद है उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई एंड आई लुक फॉरवर्ड टू माय मासी, मेरी खाला, मेरी मॉम की सिस्टर, शी वाज अ बिग फैन ऑफ आमिर एंड जूही। तो जब ये मूवी आई एंड आई यूज्ड टू गो टू माय नानीज प्लेस एंड ऑल द वे, ऑल द कबर्ड्स, किचन, और लड़कियां कटिंग्स लगाती हैं, so she used to do the same thing and I've been like wow, that like since beginning, like मैं 5 साल की थी तब से मैं आमिर खान को देखती रही हूँ। तो वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब आज आप भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं। जी जी। तो बिल्कुल मैं आज नहीं कर पा रही हूँ कि वो चॉकलेट हीरो ज्यादा अच्छा था या ये चॉकलेट हीरो हमारे सामने ज्यादा अच्छा है। काफी पुरानी हो चुकी है। उस जमाने में आमिर खान, खैर इस वक्त तो मेरे ख्याल आमिर खान मुझसे 10 साल बड़े होंगे, लेकिन उस जमाने का जो कुमार गौरव का एक ग्राफ था वो सही नहीं चढ़ नहीं पाए, तो आमिर खान ने उस चीज को, बल्कि मैं कहूंगा इस फिल्म के बारे में मैंने कहा कि इसने एक टर्न अराउंड किया पूरी इंडस्ट्री को। उसके अलावा 3 ऐसे बड़े करियर्स इसने लॉन्च किए, क्योंकि बहुत कम होता है। पिछले हफ्ते हमने मैंने प्यार किया की बात की थी, या पिछले हफ्ते की मोहब्बतें। उससे पहले मैंने सलमान खान की जो पहली थी, उसमें सलमान खान का तो लॉन्च हुआ, लेकिन जो भाग्यश्री थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, और जो उनके एसपी बाला सिंगर थे वो भी थोड़े चढ़े, लेकिन उनका ग्राफ भी नीचे चला गया। लेकिन इस मूवी में जो 3 नाम मेरे जहन में आते हैं वो है आमिर खान, जूही चावला एंड उदित नारायण, और इन तीनों का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चढ़ा हुआ। आसमान की बुलंदियों को इन तीनों ने, इनके करियर्स ने छुआ। हमें आने वाले बहुत सारे सालों में इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज दी हैं। आमिर का आप सबको पता है, जूही, मतलब मैं कहूँ एक ऐसा बबली कैरेक्टर दिखा उनका मुझे, और वो बबली कैरेक्टर उनका चढ़ता ही गया। उनकी वो चर्पीनेस, वो बबलीनेस हर मूवी में बढ़ चढ़ के। तो आज भी अब उनकी हंसी के लिए उन्हें याद करते हैं, किस तरह की रश्मि की वो हंसी थी, वो कैरेक्टर जिस तरह से इस मूवी में पोर्ट्रे किया मंसूर अली खान साहब ने, दिस इज लाइक हैट्स ऑफ, इट वाज सो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट। और दोनों ने बहुत ही उम्दा इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म के गानों की अगर बात की जाए, गानों से मुझे शिकायत है, थोड़ी शिकायत था। गानों से पहले मैं इस मूवी में जो एक मेरा फेवरेट पल है, आप कभी अगर आपको याद होए कि इस मूवी में आमिर खान की एंट्री तो नहीं थी, पर किस खूबसूरती से जूही चावला ने जब पहली बार आमिर खान को देखा था, वो तस्वीरें लेती हैं, दैट शॉट, आई मीन वो आज तक मुझे कभी रीलिव करने का मौका ही नहीं मिला। मैं खुद चाहती हूँ कि कभी ऐसा हो। मैंने कई बार अपने हस्बैंड को बोला कि ओके सनसेट के टाइम आई विल गो देयर, यू शूट मी, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा शूट कभी मेरा हुआ हो। और इस तरह से जैसे आमिर खान वहां से आते हुए दिखे सन के साथ, अरे वो बड़ा नहीं आइकॉनिक मोमेंट था। और उसकी जो धुन, जो बैकग्राउंड थी, वो आज तक मेरे जहन में, मैं याद करता हूँ ना, वो बजती है। बिल्कुल। तो वो इत्तेफाक ऐसा दिखाया कि वो इत्तेफाकन हुआ ना। जूही चावला मतलब जो रश्मि थी वो उसको प्लान कर रही थी, ना राज भाग ने बिल्कुल प्लान कर रहे थे। स्पर ऑफ द मोमेंट थिंग, तो वो लग भी रहा था अच्छा। और वो ऐसा आइकॉनिक सीन जैसे आपने कहा, इट वाज एन आइकॉनिक सीन। और फिर अगर हम आगे बात करें तो गानों से, आपको कुछ शिकायत थी? गानों से ये शिकायत थी कि कम थे। सिर्फ मेरा ख्याल है 4 गाने हैं पूरी फिल्म में। हालांकि फिल्म अच्छी खासी 2-2.5 घंटे की होगी। और उन जमाने में, बल्कि अभी भी बॉलीवुड में उमूमन ऑन एवरेज 7 से 8 गाने होते हैं। लेकिन बीच में एक जमाना आया था, और क़यामत से क़यामत तक ही से लेके कुछ और, जैसे एक तेजाब फिल्म थी, उसमें भी 4-5 ही गाने थे। कुछ अरसे तक उन्होंने गाने कम कर दिए थे। तो इस फिल्म में क्योंकि 4 गाने इतने खूबसूरत हैं, मैं समझता हूँ कि अगर और गाने होते तो वो भी सुपर हिट्स होते। पर गानों की अगर बात करें तो 4 थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। क्या म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद साहब ने, और मजरू सुल्तानपुरी के जो लिरिक्स थे, आज भी अगर ए मेरे हमसफर का अगर आप म्यूजिक सुने, आई मीन हार्ट मेल्टिंग। मतलब कभी आप बैठे हो और अगर आपका मन करे कि कोई एक अच्छा सा धुन, एक अच्छी सा गाना हो, तो ए मेरे हमसफर आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। मुझे सबसे अच्छा वैसे लगता है गजब का है। गजब का क्या कहूँ, मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा, आप लोगों का ख्याल है।
आप लोगों का ख्याल रहता है हमारे। पर रात दिन किसका ख्याल रहता है वैसे? हाँ, ये तो आपने बात बदल दी। आप कह सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहें हमसे। हाँ, नहीं दुनिया देख रही है, वरना मैं कह देता। चले चले ठीक है, चलिए दुनिया देख रही है। लेकिन उस गाने की एक तो एनवायरनमेंट जो सेटिंग थी, जंगल में दो एक लड़का लड़की खो गए हैं, और उसमें पूरे वक्त जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको भी ये दिल चाह रहा है कि काश ये कभी कहीं पहुंच ना पाए, दोनों हमेशा यही रह जाएं। हाँ, ये सफर और वो दोनों कैरेक्टर्स भी असल में चाहे जितना छुपा रहे थे, हालांकि रश्मि तो फिर भी पोर्ट्रेट कर रही थी, लेकिन राज का भी यही दिल था कि अब हम कभी हमें मिल ना पाए रास्ता। लेकिन बहरहाल सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, मैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के भी। और अगर बात करें हम पापा कहते हैं गाने की, उस गाने का एक अलग ही ऑरा था। आई मीन आपको पता है वो गाना इतना पॉपुलर हुआ उस वक्त, तो हुआ ही, तो आप आज गिटार लेके इसलिए बैठे हैं। अपने गिटारिंग स्किल्स भी और अपनी आवाज सुनाने आए होंगे, सुनिएगा जरूर। सीरियसली आपको आता है बजाना? ये देखिए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो जो मैं बताना चाह रही थी, ठीक है आपने बहुत अच्छा बजाया, ठीक है थोड़ी ताली हम इनके लिए बजा देते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो ये गाना इतना पॉपुलर उस वक्त हुआ, एक यूथ का एंथम बन गया था। आई वुड से एंथम इज अ बिग डील। और उसके बाद आपको याद है कि ये गाना कितनी बार और मूवीज में पिक्चराइज हुआ है। आई मीन अगर मैं नाम लूं, हम साथ साथ हैं, सैफ अली खान ने इसे दोबारा किया। अभी हम अगर इसी सदी की बात करें 2023-22, काफी सारी मूवीज में इसका एक रिफर्बिश, आप किसी भी मूवी में इसका बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है। एक राजकुमार राव की मूवी आई है, उसमें इसका बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है। एंड सी दिस इज ना दिल के करीब है। आई नो, हर जगह हर कल्चर का, हर मुल्क का पापा जो है वो यही कहता है कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। लेकिन करते नहीं, कुछ बेटे जो है ना करते नहीं। और जिस तरह से वो सॉन्ग आपने मतलब हम हर फेयरवेल में उसे बजने लगा, वो हर फेयरवेल में हम उस गाने को यूज करने लगे। आमिर खान ने उसके बाद दिल चाहता है में कोई एक फेयरवेल वाला सीन किया, बट दैट्स आल्सो लाइक कनेक्टेड टू वेरी लाइक अ बिग मास। बट ये आइकॉनिक था, इसे नोबडी कैन रिप्लेस। द गिटार, द आउटफिट, द लुक्स एंड द सॉन्ग। मगर so, ये तो उदित नारायण ने न जो जाने कमाल किया, मेरी मंजिल है कहाँ, बिल्कुल कोई नहीं जाने। बहरहाल वक्त कम है, इसीलिए हमें तो हम इसके बारे में थोड़े से फन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस फिल्म में जब आपकी पहले कोई मूवी रिलीज होती थी तो एक होर्डिंग्स लगती थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती थी, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स। कयामत से कयामत तक में होर्डिंग्स पे पिक्चर्स ही नहीं थी, कोई फोटोग्राफ नहीं थी। द ओनली होर्डिंग नासिर हुसैन ने रिलीज किया, उस पे लिखा हुआ था हु इज आमिर खान। आमिर खान की डेब्यू मूवी थी, हु इज आमिर खान, ask the girl next door. That was the like thing which is a very innovative thing, innovative ad campaign जो इस मूवी के लिए नासिर हुसैन साहब ने लॉन्च किया। और इतना पॉपुलर हुआ ये मूवी जब हिट हो गई तो एक और चीज डिस्ट्रीब्यूटर ने की कि आप 8 टिकटें और ज्यादा लेंगे तो आपको जूही और आमिर खान का एक पोस्टर फ्री। क्या क्रेज था उस वक्त पोस्टर्स का। पीपल वर सो मैड, दे वर जस्ट बाइंग 10 tickets, even if it's like one single guy, but they were keep on buying just to get a poster of Juhi and Amir. So this was really, really commendable things the ad campaign. बल्कि एक चीज मुझे याद आई क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने का एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इन्होंने। उसमें आमिर खान ने ये कहा था कि वो आमिर खान खुद इस फिल्म की मार्केटिंग करने सड़कों पे फिरते थे, पोस्ट कार्ड्स या फ्लायर्स बांटते थे। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो जुच्ची थे, उनके जो को स्टार थे राज जुच्ची, जो कि उनके फ्यूचर में ब्रदर इन लॉ बन गए, और उनका कजन। तो इन तीनों ने ऑटो रिक्शा पे पोस्टर्स खुद लगाए, खुद अपनी पब्लिसिटी। क्या बात है। और आज देखो वो इतने बड़े स्टार हैं, साल में एक मूवी, और हम सब जानते हैं आमिर खान क्या बड़ा नाम है, और वो उनकी पहली फिल्म में उन्होंने खुद अपनी फिल्म की पब्लिसिटी की। लगता है हमें भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अपने सपने पूरे करने के लिए कोई भी चीज आप करना चाहें उसे जरूर करें, कभी पीछे ना हटे। ये मत सोचे कि अरे मैं ऐसे करूंगा ये होगा वो होगा, नहीं। और अपने प्यार के लिए हमेशा स्टैंड ले, हमेशा खड़े होए। और ये मत सोचे कि आप अकेले हैं, क्योंकि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरे तो हैं हम। That was very nice. I mean, like मुझे बहुत मजा आया आपसे इस मूवी के बारे में बात करने के लिए, बात करके। Hope आपको भी उतना ही मजा आया होगा। तो प्लीज आज जाके एक बार फिर से राज और रश्मि से मिले। आप वक्त निकालें, आज नहीं निकले तो आने वाले
वीकेंड पे निकालें, जब भी आपका दिल करे तो एक बार ये मूवी की यादें ताज़ा करें और अगले हफ्ते हमें फिर से बताएं या फिर हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि अगले हफ्ते आप कौन सी मूवी चाहते हैं कि जिसकी यादें हम आपके लिए ताज़ा करें। तब तक अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। And we'll be back after this break. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी का स्वागत है मेरे शो पे जिसका नाम है चाय पे चर्चा। ये इकलौता इंडिया पाकिस्तान का शो है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जोक फायर होते हैं, मिसाइल्स नहीं। तो आज मेरे साथ हैं मेरे 3 बहुत अच्छे मित्र। पहले मेरी पार्टनर ईवा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट। साथ ही मैं अब्दुल्ला जी से चुरा के लाया हूँ हमारी शिल्पा जी को उनके सेगमेंट से। और फाइनली आता हूँ मेरे बहुत ही अजीज मित्र जो पाकिस्तान से हैं। इनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके का है कि ये पाकिस्तान के सस्ते रामदेव जी हैं। सस्ते रामदेव जी क्यों बोला आपने? दक्ष, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। वो टोपी उतारेगा बताएगा। नहीं, हम सारी चीजों से पहले मुझे ये बताओ दक्ष, तुमने शो पर बुलाया है, उस बेचारे एजाज को तुमने चाय क्यों नहीं दी है, बताओ ये। यार वो हमने देकर भेजी थी ना किसी को, क्या था वो? टी वाज फैंटास्टिक। यही बात एकदम बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनको भेज दिया था इज्जत से, वो बात बताना भूल गए। हाँ, वो चाय दे के भेजा था ना हमने। हाँ जी। तो मैं फिलहाल आपकी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था। हाँ जी। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, ये वैसे तो शक्ल से जेब कतरे दिखते हैं, लेकिन ये दिल के हैं बहुत साफ सुथरे। महंगाई बहुत हो गई है, पार्ट टाइम में आपको जो है वो मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं। तो जेब कतरा is your one of the job. One of my part-time job. Oh, entrepreneurship. You know, last time we talked about entrepreneurship. हाँ। So वही entrepreneurship और बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात हैं इस समय, तो बिल्कुल सूट भी करता है प्रोफेशन। बड़ा दिल पे ले लिया यार तुमने एंटरप्रेन्योरशिप तो। सीरियसली। वेरी इंटरेस्टिंग। और ईवा जी, शिल्पा ने तो मेरे साथ काम कर रखा है। आपको कैसा लग रहा है कि आज आप मेरे साथ मेरे शो में बैठी हैं? मैं यही सोच रही हूँ कि यार कैसे दिन आ गए। I feel for you. अच्छा, नहीं मुझे तो लगा था आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी एक और सवाल ईवा से ही है मेरा। शिल्पा जी, आपको मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा, आप साइड हट सकते हैं। बताएं। हाँ जी, मेरे साथ तो चलो मैं मान सकता हूँ आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको इनके साथ बैठ के ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे आईपीएल के मैच के बीच के अंदर पीएसएल का ऐड आ गया हो? और थोड़ा बफर होता हुआ ऐड, शायद बफर अभी आ रहा है। बफरिंग वाला पीएसएल तो ठीक है, लेकिन आईपीएल तो भाई चीयर लीडर्स और एड्स का शो होता है। क्रिकेट तो बस बैकग्राउंड में ही चल रहा होता है। अच्छा जी। ये आपने इस तरह की स्टेटमेंट किस बिना पे पास? आईपीएल का टेलीकास्ट नहीं होता ना पाकिस्तान। ओह यार, एक्चुअली यू आर राइट। मैं इस डे में हमारे बत्ती नहीं आती ना असल में, तो मसला यही है। मसला यही है यार, थोड़ा कनाडा से यार ले लो यार, बत्ती का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ। आप हम भी ले लेते हैं। नहीं, इस चीज को मैं एक ही बात से खत्म कर सकता हूँ। देखिए, आईपीएल के अंदर खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, तो अब वो पीएसएल में तो खेलते नहीं। तो मुझे लगता है ये एंड ऑफ डिस्कशन, यहाँ पे डिबेट खत्म होती है, माइक ड्रॉप। बहुत बढ़िया माइक ड्रॉप। इंडिया का जो है वो आपका, मुझे कल्चर और लैंडस्केप और इस तरह जो आर्किटेक्चर है इंडिया का, वो बहुत आकर्षित लगता है। हाँ जी, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपको इंडिया का लैंडस्केप देखना हो तो बस वीजा लगा के आए, अपने भाई बंधुओं की तरह तारों के नीचे से ना आए। यार वैसे एक बात बता, तारों के नीचे से गए तो हमारे बजरंगी भाईजान थे। हाँ, ये बात ठीक है यार मतलब भेजा भी हमने चाय पिला के था, लेकिन उसमें फर्क ये था कि उसकी पूरी आर्मी ने, पूरे देश ने बजरंगी भाईजान को इज्जत से छोड़ा। यार भाईजान है, बात है बजरंगी भाईजान के लिए एक बात तो यार जोरदार तालियां बनती है। बिल्कुल बनती है। तो आज इस सेगमेंट पे हमारा जो मेन मोटिव ये था कि आज हम 3 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी हमारे भाई बेचारे अकेले पड़ गए। नहीं यार, है तो यार अपने भाई बंधु ही यार। शेर हमेशा अकेले आता। नहीं तू चिंता मत कर, हो तो भाई बंधु ही यार, जैसे यार पड़ोसी भाई बंधु रिश्तेदारी। आप देखो 3 लोग लगे एक को कम्पीट करने। यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज्यादा चौड़ा मत हो, रिश्तेदारी हमेशा रहेगी। अच्छा ठीक है, हल्के में ज्यादा हो गया। बाकी बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि है हमारे भाई बंधु, और मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, जो हमारे नेता लोग काम करते हैं एक दूसरे को लड़ाने में, मैं भी लगा हुआ था। कोशिश मेरी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे भाईचारा बहुत है। इससे ज्यादा मैं अभी, और जो हमारा शो का आज मोटिव है वो मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा। हम लोग जैसे 3 हिंदुस्तानी इकट्ठे हो गए हैं, साथ में 1 पाकिस्तानी, तो हमने सोचा क्यों ना
हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान किया जाए, क्योंकि क्रिकेट के मैच में तो इसका सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो इसीलिए आज जो मेरे साथ बैठे हैं एजाज, आज हम जिस तरीके से ये कंडक्ट करने वाले हैं, तो पहले हम 3 सेगमेंट इसको लेके चलते हैं। ठीक है, पहला सेगमेंट में हम बात करेंगे खाने के बारे में, बिल्कुल। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, बिल्कुल। और तीसरा मुझे लगता नहीं है कि हमारे एजाज वाले आवाज वाले करने देंगे, अच्छा क्योंकि वो हमें बेचारे टाइम नहीं देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो मैं इसलिए आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो कृपया इसे देखें और आवाज टीवी को बोलें हमें और काम दें, थोड़ा थोड़ा हमारी इज्जत दें, नहीं तो ये हमें शो से निकालने की फिराक में। तो धन्यवाद जी। तो बात शुरू करते हैं बिरयानी से। बिल्कुल, क्या बात है यार, भूख भी लगी है। अभी तो भूख लग गई है ना। एज आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं बिरयानी से बात शुरू करूंगा। बिल्कुल। आप लोगों के इंडिया में हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। बिल्कुल है, तो उसका आप क्या डिफाइन करोगे कि मतलब अगर आप compete करना चाहो कराची वर्सेस हैदराबाद बिरयानी, तो आप? यार कराची बिरयानी कभी खाई ही नहीं। अरे तो कराची बिरयानी इज लाइक फुल ऑफ यार, हैदराबादी इज लाइक एवरीवेयर, दी अदर हर नुक्कड़ पे मिल रही है यार। अब रेस्टोरेंट्स हैं। गो इन मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर कराची बिरयानी। आप देखो, आपने कहीं लाहौर बिरयानी नहीं देखी होगी। Yes, you're right. But still, I always go for Hyderabadi biryani. I don't know why. Karachi biryani is full of spices and it hits you right in your head. Like Hits you. Hits you. Like, क्या डालते हो, नशा करते हो यार? It hits you like food gasms. Oh my God. अच्छा मैं ये बताऊं, आप फूड की बात कर रहे हैं, हैदराबादी बिरयानी ना एक फीलिंग है, आप अग्री करोगे? इमोशन है। हैदराबाद के लोगों का प्यार, उनका मस्ती, सारा कुछ मिक्स, बड़े मसालेदार बिरयानी। इट्स अ कंफर्ट फूड, इट्स अ फीलिंग। यू नीड द डोज एवरी नाउ एंड देन। क्या ये बात है कराची बिरयानी में? आप बताएं। कराची बिरयानी के अंदर एक कराची के अलग डोज है। अच्छा, जो किस तरीके का डोज? किस तरीके का डोज है? जरा जवाब जानना चाहता हूं। ये कर क्या रहा है? ये कह रहा है आपको हिट करती है, उसमें डोज है। यार ये पक्का नशा खिलाते हैं। Not just our missiles hit, but also our biryani hits. बिरयानी hits. तो it hits you right in the head. Right in the head. हाँ जी। तो अब देखिए, ये डिबेट तो एक ऐसी है जो मेरे को नहीं लगता कि हम खत्म कर पाएंगे। और दोनों बिरयानी, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन आपकी हैदराबादी बिरयानी में आलू है कि नहीं? यार हाँ, एक डालते हैं वो। देखो, नहीं। Yes, definitely. तो आपने हैदराबादी बिरयानी नहीं खाई। आप शिल्पा जी, आप इस पैनल से बाहर जा सकते हैं। माइक ड्रॉप, कराची बिरयानी wins by आलू। आलू एंड सीरियसली आलू यार हमारे यहाँ सब्जी में डलता है, तुम साले बिरयानी में भी आलू डाल दो। Not complete with the आलू। अच्छा, इसमें मैं आप सबको पुलाव कह लो, पुलाव खा लो आलू डाल के। इस बात पे मेरे को लगता है कि मेरे को बीच में आना पड़ेगा बीच बचाव करने के लिए। तुम्हारी गलती है, तुमने लड़ाई स्टार्ट की है। मेरा तो साले लड़ाई भी क्या शुरुआत की साले खाने पे, बिरयानी पे। मेरे को तो शो चलाना है, और जब तक लोग लड़ेंगे नहीं, आप लोग देखेंगे नहीं, तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि खाने की चर्चा तो ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि ये लोग मारकुटाई पे आ जाएंगे और सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है। तो मुझे अपना बीच बचाव करने के लिए यहाँ से ये मुद्दा खत्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आमतौर पे ये धारणा है कि लड़कियों को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारे साथ पैनल में कुछ इस तरीके की लड़कियां बैठी हैं जिनको क्रिकेट में बड़ा दिलचस्पी है। बिल्कुल। तो हम उनसे पूछते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप बताइए कि इंडियन टीम क्यों बेटर है पाकिस्तानी टीम से? आपको प्रूफ चाहिए? ये मुझे लगता है ये ना काफी रिटॉरिकल क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। Yes. बट मुझे ऐसा लगता है थ्रू आउट जब इंडिया की गेम चलती, मुझे बहुत पसंद है इंडिया पाकिस्तान की गेम, और मैं बहुत एक प्यार के नजरिए से देखती हूँ, नॉट इन अ वेरी हॉस्टाइल वे, बट आई वुड से दैट इंडिया की गेम एकदम सस्पेंस वाली चलती है, लेकिन एंड में एक जो बॉम्ब फूटता है, वेरी आयरॉनिक दैट आई से दैट, बट I think I love the एक सेकंड ईवा जी, मैं आपको जरूर काटना चाहूंगा। उन्होंने बम की बात की, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी क्या कह दिया है? मैं जैकेट अपनी छोड़ कर आया हूँ बाहर अभी, तो नहीं तो मैं जरूर इनकी बात का जवाब देता। यार देख कहीं छुपा हुआ तो नहीं हुआ, अपना मकसद चेक कर अच्छे से याद है। पाकिस्तान जाना है वापस? पाकिस्तान। हाँ जी, ईवा जी कंटिन्यू बताइए। यार तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सॉरी जी। कोई बात नहीं, ये जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि जिस तरह से हमारी इंडिया टीम प्रेशर सिचुएशंस में खेलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम इसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, बात ये है कि बात तो सच है,
मगर बात है बात निकली है तो दूर तक जाएगी। रुसवाई की। रुसवाई बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल किया है आपने। एलाबोरेट करें इस पे प्लीज। बस अब जितना आप खोलते जाएंगे तो मतलब आप हमसे अग्री कर रहे हैं इसमें आप हम एक दूसरे से मुखातिब हैं। मैं इस बात पे एक बात बॉयज आर वर्किंग, लड़के अच्छा खेल रहे हैं इंशाल्लाह बिरयानी खा रहे हैं, कराची बिरयानी। देखिए इस तरीके से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। जैसे खाने की बात हुई तो आमतौर पे यहाँ पे पलड़ा थोड़ा इंडिया की साइड का भारी है, लेकिन हमने बराबर कर दिया। क्रिकेट की बात आई तो ये क्लियर हो गया कि भाई विनर इंडिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल उस तरीके की सिचुएशन हुई जिस तरीके का हर युद्ध में हुआ है। तो मुझे लगता है सिंस जैसे मैं बॉलीवुड की हूँ, आपने बताया मुझे उस सेगमेंट से लाए हो, यू नो मूवी थी एक आई थी इंडिया पाकिस्तान गदर एक प्रेम कथा, तो उसमें एक चीज बोली गई है, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। तो मुद्दा खत्म करो यार, इसमें क्या मुद्दा है यार। नहीं ये चीज को मैं अपने शो पे ये चीज को मैं अपने शो पे नहीं चलने दूंगा। दादा भी होता है, दादा भी होता है। हाँ जी, तो अब मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन फिलहाल के लिए इतना हो गया है बहुत, क्योंकि शिल्पा जी बहुत थक चुकी हैं, बहुत काम करती हैं आजकल, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको ज्यादा देर तक रोकूं, नहीं तो अब्दुल्ला जी मेरे को बहुत मारेंगे। तो और आवाज में रहना है तो बिल्कुल अब्दुल्ला जी को नाराज नहीं कर सकते, है ना। ऐसे लोग हैं ना दक्ष जैसे जो आग लगा के ना बाजू चले जाते हैं। तो आप जा रहे हो अभी शो से बाहर निकलेंगे और कहेंगे और भाई बिरयानी तो खिला दे फिर। अब तो आज कराची बिरयानी खाएंगे, आज डिनर में कराची बिरयानी, आज डिनर में कराची बिरयानी डन। बिल्कुल आज हमारे दक्ष भाई कराची बिरयानी खिलाएंगे। और ऐसे ही मैं आप सबसे बोलूंगा कि हमें बिरयानी खिलाते रहें, और वो खिलाने का एक ही तरीका है कि हमें देखते रहें, अपना प्यार इसी तरह हमारे तक पहुंचाते रहें, और आज खुद भी कराची बिरयानी खाएं, हमें याद कीजिए। शब्बा खैर। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे, और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new
बैंकेट हॉल, गार्डन इवेंट सेंटर। आपका ज़ौक देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ौक है आपका। कॉल राइट नाउ 905-625-7786। ज़ौक वालों के लिए। जी नाज़रीन, welcome back to our show Do Mastane, presented by Cine Dreams Media. यार आज वैसे आप बहुत इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोपहर लग रहे हैं, डैपर लग रहे हैं, डैपर लग रहे हैं, डैपर लग रहे हैं। तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि I've come to क्या कहते हैं, conclusion, eureka moment कि you know when with 3 people they call it a threesome, with 2 people they call it a twosome, right? तो अब मुझे ख्याल आया कि now I know why they call you handsome. अब मुझे it's such a eureka moment. Hey man, what am I gonna do? What are you gonna do, man? You stay handsome. जहाँ hand है वहाँ some भी है. Don't you think that's the best way to go? That is the best way. You don't have to answer to anybody. And you got 2 of them. And I got 2. एक टूट भी गया. हाँ, दूसरा यूज इस्तेमाल करो. And I don't have to answer to anyone. I don't need anyone's attitude. Yes. My hands love me. These hands. Remember Ross? Oh yeah, the magic hands. The magic hands. What does he say? These babies. These babies. The only person that's going to be enjoying these babies is me. And then he goes, oh, what did he say? I gotta go. And he leaves. अब ऐसी बातें छिड़ ही गई हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा और हंसी मजाक हो जाए, चाहे वो डेड जोक्स हो, ग्रैंड डेड जोक्स हो या वेरी बैड जोक्स हो. Bad jokes होंगे. लेकिन a teacher asked the student to make a sentence with the word harassment. So the student said, I was dating a girl and harassment a lot to me. Harassment a lot to me. Now your turn. You go. I have nothing to say. I've got jokes, but they're very, very racist. You're talking. Yeah, there you go. You're talking about sharks a couple of moments. Oh, what was the thing about sharks? What is the similarity between sharks and people? Sharks and people. Something about great whites. The great ones are white. Oh, the great ones are white, right? And they are white. They are white. हम जो ये जो देसी लोग जो ना हमारे जो गफूरे जो हैं हम जो ना हम हमेशा ग्रेट वाइट शार्क की तरह बनना चाहते हैं. हाँ. लेकिन हम साले हम वो साले वो कछुए भी वो जो what do you call crabs and lobsters, man? Yeah. Crabs और lobsters. और crabs और lobsters हैं हम. और हम चले बने हम साले वो क्या कहते हैं, केकड़ा साले केकड़े की वो साली औकात नहीं है, केकड़े की औलाद. और वो शार्क्स बनने की कोशिश करते रहते हैं. यार बड़ी गहराई है इस बात में. Very गहराई, बहुत गहराई है. It's so deep that it's stuck in the sand. मैं डूब ना जाऊं, and then अगर मैं डूब गया तो मुझे वो केकड़े वेकड़े खाने then you start eating at the wrong places. Yeah. आज हमें बहुत असल में हमारी co-host जो हैं वो गई हुई हैं Bahamas. Oh yes. Cuba. Yeah, I'm very happy for her that she gets to get all the sun and we get nothing but snow. But what if she gets kekade too over there? Oh yeah. Well, yes. And white sharks. And white sharks. As long as they're great white sharks. Well, whatever the hell it is, it's much better than the 16,000 centimeters of snow that we're getting over here. हाँ. अभी हम जो यहाँ आपको लग रहा है कि हम आराम से बैठे हैं. ना. अपने आराम से कोर्ट में और अभी वो ना कोई छत ना कोई वो है. कुछ भी है अपना. बाहर निकल के देखिए. हाँ. We're getting dumped by what? 5 centimeters of snow. Which is a big deal for this year because we haven't had any snow. I don't know. I don't think we should say 5. Increase it so that people will say, "Acha, okay, that makes sense." I'm agar roaring over 5 centimeters. I think it's going to be about 20 centimeters of snow. But the thing is, Abdullah, मैं भूल गया. Forget it. मैं भूल गया. खैर एक दो racist jokes और सुना दें क्योंकि आप लोगों को पसंद बहुत हैं. There's something about racist jokes that people just love them, man. They love and hate it at the same time. No, they pretend to hate them, लेकिन अंदर से बहुत उनकी वो जो शैतान का वो जो है ना वो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही जाग जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हो. जाग जाती. देखो यार अब्दुल्ला, listen, let's not mince words, man. Yeah. Let's call a spade. हम हंसते हैं at these kinds of jokes, racist jokes and dirty jokes, and yes, a part of our conscience says such ghatiya wahiyat stuff, but inside you're like, yeah. You know, because I think racist jokes bring out the real person. जो अंदर हर इंसान के अंदर एक मुनाफिक छुपा होता है, hypocrite. It brings that out. ये आप ये जो छोटे-मोटे ये lame jokes होते हैं ना, ये कोई नहीं सुनता. जहाँ racist jokes होती हैं वहाँ कान खड़े हो जाते हैं. ये बिल्कुल सही. ये तो why are stand-ups so successful? Why are those big stand-ups successful? Yeah. Because they say stuff that leaves you very uneasy and uncomfortable, but yet you're going to pay $50 for that ticket to go watch him. Yeah.
even though it makes you feel like shit, like what the hell did this guy just say? लेकिन मुझे I know I'm supposed to tell you a few more jokes, लेकिन मुझे यार I like this topic though. ये मुझे जो एक चीज होती है ना, लोग कहते हैं कि यार it makes me feel uneasy. मुझे कभी नहीं हुआ कि if somebody calls me brown, I mean कोई बात नहीं, मैं हूँ brown. क्या हो गया? वैसे तुम ब्राउन नहीं, बड़े सफेद लग रहे हो तुम। ऐसा लग रहा था तुम वो सर्फ से नहा के आए हो तुम। मैं वो ब्राउनी मैं पक रहा था, तो मुझे जल्दी निकाल लिया था थोड़ा देखने के लिए, भाई ये कच्चा तो नहीं है, वो फिर कच्चा ही मुझे भेज दिया यहाँ पे। ऐसे पक्का कच्चा पक्का भेज दिया इसको। पक्का भेज दिया। But anyways, to each his own. People do get either very offended, yeah, or they enjoy racist. But Abdullah, you know, the thing is, extreme है। बात ये है कि लोगों की जो natures जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। Not everybody is like you, who is very easygoing. There are guys like you. You're more understanding, right, and more patient about things like that. Other guys, man, you know that. Like if someone says something to me, man, I'm just gonna kick their ass. I will not be able to sleep tonight if I don't tell this racist joke right now, because मेरे अंदर से मेरा शैतान जो है उसे बाहर निकाल रहा है। बाहर निकल रहा है। कूट के बल के हाँ। हमेशा यही यूं क्यों बनती है? होता है? यूं why is this? यहाँ क्यों नहीं बनती? What's wrong with this? यहाँ क्यों नहीं बनती? हम coconuts ये जो imaginary coconuts जो है हमारे हाथ में, why do we hold it like that? Anyways, here's the joke. It's turning red, the light. Why couldn't the Chinese kid play football? Oh no, sorry. I almost messed up the joke. Sorry, Chinese boy. Why couldn't the Chinese boy play baseball? Baseball. Chopsticks? No, because he ate the bat. Oh my God. COVID की बातें हो रही थी ना? COVID joke man? मुझे COVID से ये याद आ गया। COVID ये you know ले हूँ माँ। ले। अच्छा इसी बात पे। That's not good, man. I hope we cut that. Man, just cut what I just did there, man. Just cut what or leave it. I think that'll go viral. That will go viral. Just like COVID did. Anyways, हमारा वक्त आ गया है विदा कहने को आपसे। आप अगले हफ्ते हमसे यहीं मिलिएगा, हम यहीं बैठे हुए होंगे इन्हीं कपड़ों में और इसी हालत में बगैर और ऐसे ही मैं तो नहाता हूँ यार every once a week। हाँ, ये आज स्नो में नहाएगा जाके। हाँ। He waits for a snowstorm. I wait for snow, and I wait for snowstorms to drive. Issues, man. Anyways, you take care. We'll be back next week, same time, same place, same back channel, same day. Yeah.